That is the linear equations in two variables. That is the linear equations in two variables. I hope this topic was there in 9th and 10th both the standards. और जो भी हमने 9th 10th में किया था वही हमें यहाँ पे यूज भी करना है. So let us talk about the lesson a little bit and then we'll go for the MCQs. So I'm starting with the very first thing, that is of, just a second, that is of solving the equations. Of course आपने दोनों standards में इस लेसन में क्या किया था, तो it was solving the equations. We solved the equations, linear equations of the type a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. We had different methods of solving the equations. इसमें एक मेथड था ग्राफिकल मेथड. Obviously as we are going to give CET which is of the type of MCQs, तो ग्राफ बनाओ ऐसा तो आपको कोई बोलने वाला है नहीं. You are not going to make the graphs, draw the graph and get the answers. हाँ, ग्राफ बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, like assuming the value of x and getting the value of y, ये सब पार्ट आपको MCQ में पूछ सकते हैं. We have such questions in our session, तो हम वो करेंगे यहाँ पे. And the other method which we use for solving the equation is called as the algebraic method. I hope you remember that when I say algebraic method, तो 9th और 10th दोनों standards को मिला के हम जब यहाँ पे MCQs की बात करने वाले हैं ना, तो आपको MCQ में कोई बोलेगा नहीं कि you solve by specific method. आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, फिर वो मेथड 7th का हो 8th का, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो हमें टोटल 3 मेथड्स मालूम है. वन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें आप y या x वेरिएबल के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हो और सॉल्व करके x या y के वैल्यूज फाइंड करते हो. That is one method which we have seen. The other method of solving the equation was method of elimination by equating coefficients. I hope you all remember हम ऐसे कुछ करते थे. Multiplying equation 1 by 2, multiplying equation 2 by 4. x या फिर y के coefficients को आप equal करते हो. फिर addition subtraction of equations को करके आपको values मिलते हैं. x या y के values find करना, that is solving the equations. और तीसरा एक मेथड जो स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा होता है एज क्रेमर्स रूल, एंड जो ICSE स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोई है, यू हैव सीन दिस मेथड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन योर 9th स्टैंडर्ड. यानी आप यहाँ पे आपके 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका कंपैरेटिवली सिंपल होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्रेमर्स रूल, जो कंपैरेटिवली सिंपल है. So let us talk about these three methods one by one. Short में करेंगे discuss, बहुत ज़्यादा नहीं. For example, if I have this question, method of substitution, ये question है. यहाँ पर आपके पास दो equations है. One equation is s minus t is equal to 3 and the other equation is s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Question is solve the equations. अगर हम substitution method से करते हैं, what I do is I take any one variable value, like here from the equations 1 I find the value of t. क्या किया मैंने equation 1 में, तो rearrangements किए, like I shifted t on the other side, I shifted t on the other side, तो वो हो जाएगा s minus 3 is equal to t, जो हमने यहाँ लिखा होगा, it is t is equal to s minus 3. Then we substitute that value of t s minus 3 in equation 2. आपके इक्वेशन 2 में जहां पे t है, that is replaced by s minus 3. फिर आगे आपका सॉल्विंग है. You don't want denominator, so you multiply by 6. When you multiply by 6, you get 2s plus 3s minus 9 is equal to 36. Solving that equation, we get s is equal to 9. And substituting that value in equation 1 या 2 या 3, I get the value of t. T is 9 minus 3, that is 6. और इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अभी फिलहाल आपको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बचाना है. I'll request all of you to take a screenshot of this. Screenshot निकाल लो इसका, so that आप जब रिवाइज करने बैठो तो आपके सामने ये रहेगा, आप उसको रेफर कर पाओगे. Okay, take screenshot of this. फिर भी मैं आपको बताऊंगा ऐसे कि since we are going to write the MCQ type paper, इतना सब कुछ लिखना ही होगा ऐसे कुछ जरूरी नहीं होता है. You can solve it verbally also and get the required answer. तो भी आपको आंसर वही मिलेगा जो आपने सॉल्व किया होगा. वर्बली सॉल्व करने का मतलब कोई और मेथड से नहीं करना है, यही मेथड से करना है. बट नॉट रिक्वायर्ड कि आप सारे स्टेप्स लिखते बैठोगे, आप शॉर्ट में उसको कर सकते हो. तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया आ जाएगा. सो द अदर मेथड इज by equating coefficients. So for that I have taken these equations.
2x is equal to 5y plus 4. Now in this equation I'll just rearrange the terms. I'll write it in proper way. Like मैंने 5y को shift कर लिया, so it will become 2x minus 5y is equal to 4. The other equation is 3x minus 2y plus 16 is equal to 0. तो उसका आ जाएगा 3x minus 2y is equal to minus 16. Once I get this both the equations, I find that इसमें x या y किसी भी variable का coefficient equal नहीं है. The method says we will equate the coefficients to eliminate. Coefficients को equal करने के लिए I will multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 2. When I do that in equation 1, when I multiply by 3, I get 3 to the 6x, 3 5 the minus 15y, 3 4 the is 12. That is equation 3. हम जब equation 2 में 2 से multiply करते हैं तो we get 2 3 the 6x, 2 2 the is minus 4y, and 2 into 16 is minus 32. That is equation 4. अब ये दोनों equations बनने के बाद में I find that 6x 6x both are positive 6x and therefore we will eliminate that. कैसे eliminate करेंगे? तो we will subtract the equations. So this is first equation जो हमने बनाया था, this is second equation जो हमने बनाया था, दोनों को हम subtract कर रहे हैं. We know that when we subtract the signs will change. This will become minus 6x, this will become plus 4y, and this will become plus 32. 6x and 6x it gets cancelled. Minus 15 plus 4 is minus 11y. 12 plus 32 is 44 and therefore we get y is equal to minus 4. हमने minus 11 से divide किया. Once I get the value of y, I'll substitute that in the equation 1 and therefore I get 2x minus 5 into minus 4 is equal to 4. Solving that, I get value of x is equal to minus 8 and thus I get the solution as x is equal to minus 8 and y is equal to minus 5. Once again, मेथड पूरा मैंने बता दिया है, लेकिन हम जब एमसीक्यू पैटर्न करेंगे तो शायद इतना डिटेल में हम आंसर नहीं लिखेंगे. तो उसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया आपको डेफिनेटली आ जाएगा. फॉर द टाइमिंग यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आल्सो. फिर हम आगे बढ़ते हैं. Okay, I hope your screenshots are already taken. I'll go for the next part. अब यहाँ पे थोड़ा जो next part हम करने वाले हैं, that is important because अगर यहाँ पे कोई ICSE CBSE स्टूडेंट बैठा है तो they might not be knowing what is Cramer's rule. But I'll just tell you that नया नहीं है, थोड़ा different है. I hope you remember in 9th standard you have done cross multiplication method for solving the equation. ये वही है, लेकिन इसको हम determinant के फॉर्म में लिखते हैं, which makes the question, which makes the method a little bit simple. For that I must understand what is determinant first. तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है determinant is the rectangular arrangement of numbers in the bars. There are 2 bars given. आप देख सकते हो यहाँ पे. There are 2 bars given and there are 4 numbers used in the bars. A, B, C, D. They are numbers. They are numbers. इसमें A, B जो है they are in the first horizontal row. C, D जो है they are in the second horizontal row. So A, B, C, D they are called as rows. Whereas AC they are in the first column, BD they are in the second column because they are vertically arranged. So AC BD are the column rectangular arrangement of numbers. अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करना शुरू नहीं किया होगा, हम डिटरमिनेंट पहले समझ ले रहे हैं. डिटरमिनेंट क्या है? इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज अरेंज्ड इन कॉलम्स. हम जब डिटरमिनेंट्स को यूज करने वाले हैं तो हमने देखा यहाँ पे there are 2 rows and 2 columns. Obviously हम linear equations in 2 variables करने वाले हैं, तो 2 variables के equations को solve करने के लिए हम डिटरमिनेंट भी 2 ऑर्डर 2 वाला यूज करेंगे जिसमें 2 rows और 2 columns आपको मिलेंगे. एंड इन वैल्यूज को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग मीन्स
a into d b into c, ये जो प्रोडक्ट आएगा इसे माइनस करना है। देखो a into d b into c, प्रोडक्ट जो आएगा उसे हमें माइनस करना है। This subtraction is called as the value of determinant. It is called as the value of determinant. AD minus BC is called as the value of determinant. And जो determinant हम लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे अगर आप बहुत सारे determinant लिखोगे तो उनको हम naming करेंगे। Namings are already generally done with the capital alphabets. A, B, C, D, ऐसे आप जितने determinants है उतने आप naming कर सकते हो। So this is what is determinant. अब इसे हम यूज कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय? बिफोर आई गो फॉर दैट, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ये जितने भी स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको भूल नहीं जाना है। 2 बार 3 बार उसको रीड करोगे तो मे बी इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट इज टेकन नाउ। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजिंग क्रेमर्स रूल, आप जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको 3 स्टेप करने होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे तीनों स्टेप लिखा हुआ। The very first step is write the given equation in the form of ax plus by is equal to c. For example, if the equation is 3x is equal to 5y minus 18, अगर ये इक्वेशन दिया है तो मुझे बोलना है कि I should write it in this form. तो कैसे लिखेंगे? It will be 3x minus 5y is equal to minus 18. A is 3, B is minus 5 and C is minus 18. आपके सारे इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिए हुए ये इसी फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन गिवन इज लाइक दिस, 5x minus 17 is equal to 11y. How will you arrange this? What will be the proper arrangement for this question? Yes, Ameya बोलिए। 5x minus 11y is equal to 17. 5x minus 11y is equal to 17. Very good. 5x minus 11y is equal to 17. इसमें a will be 5, b will be minus 11 and c will be 17. चलो इसका सेकेंड स्टेप होगा, आप इनके डिटर्मिनेंट वैल्यूज फाइंड करोगे। 3 डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करने होते हैं, d, dx and dy. What is exactly d, what is exactly dx and what is exactly dy, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँ। Once you get this determinant, अभी हमने देखा है इसके पहले स्लाइड में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। Once you get the determinant, आप उन तीनों डिटर्मिनेंट को यूज करके use this formula to get the value of x, use this formula to get the value of y. Okay, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जिससे आप डायरेक्टली x और y फाइंड कर सकते हो। तो जो आईसीएसई स्टूडेंट्स है ना, उनको थोड़ा ये नया लगेगा, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने ये जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है मैंने, उससे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका बराबर से याद आ जाएगा वंस यू डू दैट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विल मूव अहेड लेटर, थोड़ा इसको पढ़ भी लो। ओके, ओके, सो हमने क्रेमर्स मेथड को लेके 2 स्लाइड अभी देखे। इसमें पहले स्लाइड में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, और दूसरे स्लाइड में देखा कि हमने इक्वेशन से डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे। अब वो एग्जैक्टली डिटरमिनेंट में करना क्या है। ओके, सो फॉर दैट आई विल टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर टू लीनियर गिवन इक्वेशंस, नाउ देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी अरेंज्ड है, they are a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Then my determinant values will be, d will be, see this, what is there in d? D is a1 b1 a2 b2, इनका डिटर्मिनेंट, मतलब x और y के कोएफिशिएंट वैल्यूज आप यहाँ पे लिखोगे, that will give us the value of d, that will give us the value of d, ये d हो गया. What is dx? तो dx के टाइम पे जो x के कोएफिशिएंट्स है, देखो जो x के कोएफिशिएंट्स है वो नहीं लिखे जाएंगे. In place of that we will write the constants, they are c1 and c2. So dx is c1 b1 c2 b2. यहाँ आप देख सकते हो y के कोएफिशिएंट्स को हमने चेंज नहीं किया हुआ है, उससे मुझे मिलेगा dx. तीसरा पार्ट है जहां पर dy के टाइम पे आप y के कोएफिशिएंट्स जो है उन्हें चेंज करोगे. You will not write them, you will write constant instead in the place of coefficients of y. वो आपको देगा dy. And once you do that, you know the method for finding x. The formula is dx upon d. For finding y, for finding x, your formula is dx upon d. And for finding y, the formula is dy upon d. इस तरह से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे. अब थोड़ा सा मैं आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बोलूंगा कि हमने क्या किया था. आई होप यू रिमेम्बर दैट हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था, हमने देखा था कि वी विल स्टार्ट विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, b1 एंड b2 पहले हम लिखेंगे. फिर हमने देखा था कि वी राइट द कांस्टेंट्स c1 एंड c2. फिर हमने देखा था कि वी राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, दे आर a1 एंड a2, सॉरी a1 एंड a2. एंड फिर हमने देखा था कि वी राइट b1 b2 अगेन. ओके, अब इसमें पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट माय डिटरमिनेंट वैल्यूज. आप चेक करो, b1 c2 minus c1 b2 is nothing but this value, that is dx. a2 c1 minus a1 c2 is nothing but my dy, यानी यहाँ पे आप dx फाइंड करते हो, यहाँ पे आप dy फाइंड करते हो, and a1 b2 minus a2 b1 is nothing but my d, यानी यही डिटरमिनेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करते थे. आंसर के लिए हमने ऐसे याद रखा था कि फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज dx अपॉन d is nothing but x. सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट y, यानी dy अपॉन d. वही है वैल्यूज, सब कुछ वही है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है ना, दैट मेक्स इट लिटिल बिट सिंपल. आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट्स फर्स्ट d में लिखेंगे, x को चेंज करके कांस्टेंट लिखा तो dx मिलेगा, y को चेंज करके कांस्टेंट लिखा तो dy मिलेगा, and then x is simply dx upon d and y is simply dy upon d. यानी ये कांस्टेंट जो हमें यहाँ पे मिले हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. Take the screenshot of this, we can move ahead. Take the screenshot of this, we can move ahead. Okay, so I hope this screenshot is already taken. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. I hope you all remember that based on linear equations हमने application का पार्ट भी किया था. Obviously, अब तक जो हमने किया है उसमें MCQs कौन से पार्ट पे पूछे जा सकते हैं. तो we can
यूज दैट पार्ट ऑफ क्रेमर्स रूल डिटरमिनेंट फॉर एमसीक्यूज। आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज डी, व्हाट इज dx, सारे वैल्यूज नहीं पूछेंगे, वो d पूछ सकते हैं, dx पूछ सकते हैं, dy पूछ सकते हैं, और दे कैन गिव अस द वैल्यू ऑफ x, सॉरी d, dx एंड dy ऑलरेडी, और बोलेंगे फाइंड x एंड y, ये भी पूछा जा सकता है। सो ये सारे फॉर्मूले पार्ट है जो आपको आने चाहिए। इन द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो, एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, वर्बल क्वेश्चंस को इक्वेशन बना के सॉल्व किया था। हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो मैक्सिमम व्हाट दे कैन आस्क फ्रॉम द एप्लीकेशन पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन तो पहले पार्ट में वो पूछ लेंगे ना, इस पार्ट में से क्या पूछ सकते हो, दे कैन आस्क यू हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस। एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो सकता है या दो इक्वेशंस हो सकते हैं जो वो पूछेंगे कि कैसे बन सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जब क्वेश्चन देखेंगे वो पार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। आई एम स्टार्टिंग विद दिस ग्राफिकल मेथड। मैंने बोला ग्राफ बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे वैल्यूज फाइंड करने के लिए। उसने यहाँ पे पूछा हुआ है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसका ग्राफ बनाना है। आपको पूछा गया है फाइंड y व्हेन x इज 1। ऑलरेडी x दिया है, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड करना है। ये समय, Sir, answer is B, option B. ओके वेरी गुड। x का वैल्यू है 1, y हमें फाइंड करना है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा। दैट इज 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, दैट इज 5y is equal to 15, and therefore I get y is equal to 5 3s, therefore y is 3, y is equal to 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका आंसर हमें मिलता है ये। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ में भेज दूंगा बराबर से, आप सिर्फ आंसर सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर सॉल्व कर लो और उसका नंबर याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका पीडीएफ डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से उसी सीक्वेंस में मिलेगा। ओके, सो राइट डाउन दिस। Okay, I hope this is done. Anyone still writing? Raise your hands. Great. सभी हैंड डाउन है, इट मीन सबका लिखकर हो गया है। Moving ahead, एक और एमसीक्यू लेते हैं। क्वेश्चन इज फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ देखो dx dy आ गया, मतलब इट इज क्रेमर्स रूल, लेकिन पूरा क्रेमर्स रूल नहीं पूछता। उसने बोला है फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y, value of dx is 49, dy is minus 63, and b is 7. What is value of x? What is value of x? So yes, दीक्षा, कैसे फाइंड करोगे आप वैल्यू ऑफ x? D value of x equals dx upon d. Very good. So 49 by 7, 7. 49 by 7, the answer is 7. तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर y पूछेंगे तो क्या करेंगे दीक्षा? म्यूट पे चले गए, ठीक है। वेदश्री आप बता दो, इफ y is asked then how will you find that y? Sir, dy upon d. Yes, and the value will be minus 6 upon 7, जो फिलहाल नहीं पूछा है तो ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, पूछेंगे तो हम इस तरह से y भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। ओके, आई रिपीट वंस अगेन कि जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ा है, उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बोथ द मेथड्स आर सेम, way of presentation is different. Rather than using cross multiplication, if you use the Cramer's rule, that becomes more simple. Okay, वो ज्यादा simply written format है for the cross multiplication method. Okay, I hope ये आंसर भी आपने लिखा होगा। We can move ahead. Anyone still writing? Raise your hands. I repeat, question आपको लिखना नहीं है. Save your time of writing question.
मैं आपको क्वेश्चन सारे भेज दूंगा बाद में. थर्ड वन, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू. हमने क्या पढ़ा था डिटरमिनेंट में? For finding determinant, we will cross multiply. We will cross multiply and will subtract. So value will be 5 into minus 4, 5 into minus 4 minus 7 into 3, minus 7 into 3. Yes, बोलिए मोहित. Sir, 1. Answer is 1. Very good. ठीक है. 5 into minus 4 is minus 20. This is minus minus will become plus. 7 threes are is 21. Minus 20 plus 21 is 1. And therefore the answer is option D. The answer is option D. फिर से एक बार आप देख सकते हो, क्रेमर्स रूल पूरा नहीं पूछा है, लेकिन क्रेमर्स रूल के लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स में से एक छोटा पार्ट आपको पूछा गया है, that is finding the determinant. Okay, so write down this. Yes. Okay, I hope this is done. We'll go to the next question. Fourth one. ये हमारा क्वेश्चन है. तो इक्वेशंस आर गिवन. आपको डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो डी फाइंड करना है ना. ही इज नॉट आस्किंग द एंटायर आंसर, आपको सिर्फ डी फाइंड करना है. हमने बोला था कि फॉर दैट इक्वेशंस हैज टू बी अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर. वो होगा x plus y is equal to 3. तो ऑलरेडी मैंने अरेंज है. अदर इक्वेशन विल बी 3x minus 2y minus 4 will be shifted, so it will become plus 4. By the way, when I am finding D, ये अगर शिफ्ट नहीं भी करता तो भी फर्क नहीं पड़ता, because D is the determinant of coefficients. It is determinant of coefficients. Yes, Arin, आप बताइए मुझे कि coefficients में क्या लिखोगे आप, determinant में क्या लिखोगे? Sir, 1 and 1. 1 and 1 because No, x का no, coefficient, sir, y 1 का and coefficient. down. Yes. And अब then वो 3 चलेगा, and आप रो में लिखो या कॉलम में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बोलिए. then 3 and minus 2. 3 and minus 2. Yes, 3 and minus 2. Then you will do the expansion of the determinant. हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया. Sir, 1 into minus 2. 2 is minus 2 minus 3 into 1 is Minus 3 3, is and minus. therefore the answer will be minus 5, and minus 5 is option C. The answer for the question is option C. Correct, Aryan, very good. चलिए, आपको जैसे जैसे मैं खत्म करता हूँ आपको लिखना है. आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन लिखने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए. क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा बाद में. Okay, moving ahead. Question 5. Yes, Mohit. Sir, answer साठी हात वर केला. ओके, एक मिनिट मोहित, थोडंसं एक्सप्लेन करतो मग मी आपण आन्सर करूया. तो हियर थोड़ा अलग है क्वेश्चन. अगर आप देखोगे तो दिस इज कंसेप्चुअल पार्ट एक्चुअली. यहाँ पे उसने बोला है कि ax plus by is equal to c, mx plus ny is equal to d are the equations. If an is not equal to bm, then these simultaneous equations have. इसमें आपको थोड़ा सा याद रखने ये है that if you see what is d,
क्रेमर्स रूल फिर से एक बार बता रहा हूं मैं। डी, तो डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है ए बी, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है m एंड n। इट मींस ए बी फर्स्ट रो, m n सेकेंड रो। हमने डिटर्मिनेंट अगर फाइंड किया, आई फाइंड that the value is a into n, that is an, minus b into m, that is bm. So it is an minus bm. Now see this, an and bm are not equal. If the values are equal, say 5 minus 5, the answer is 0. लेकिन value equal नहीं है, 5 minus 6 करो या 6 minus 5 करो, the value will definitely be not equal to 0. It means क्या होगा, that d is not equal to 0. d is not equal to 0. So when I have d not equal to 0, उसके बेसिस पे types of solution का यहाँ पे आंसर आएगा। So when d is not equal to 0, the equations will have no solution, sorry, two solutions. Equations will have two solutions. यहाँ पे sorry, linear equation है ना, will have only one common solution. Will have only one common solution, and that is option A. तो ये आपको याद रखना है that if determinant is not equal to 0, we have one common solution. Mohit, raise your hand. अब बोलो आंसर, आपने यही आंसर बोला है और कुछ है? सर यही। यही। So d is not equal to 0. It means it has only one common solution. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रेमर्स रूल करते हुए हम जब d फाइंड करते हैं तो d डिटरमाइंस कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। एक अगर मान लो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करते हुए d का वैल्यू मिलता है नॉट इक्वल टू 0, d का वैल्यू मिलता है इक्वल टू 0, then there are two possibilities. एक पॉसिबिलिटी होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और दूसरा पॉसिबिलिटी होता है नो सॉल्यूशंस। अब वो डिपेंड करेगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy। यानी इस केस में वैल्यू ऑफ d 0 होने के बाद में जो दो पॉसिबिलिटीज आने वाले हैं वो आपके dx और dy पे बेस करेंगे। बट एज आई सेड दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्वेश्चन, तो उनको d इक्वल टू 0 वाला टाइप दिया ही नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। Okay, so we need to know only this upper part, that if d is 0, we have only one common solution. Okay. Moving ahead. एक क्वेश्चन है, मैंने बताया ग्राफिकल मेथड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड के बेस पे आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये सिमिलर टू आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, हमने फर्स्ट एमसीक्यू में ये किया था ऑलरेडी। That the given equation is 2x minus 6y is equal to 3. तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें पहले ऑप्शन में x का वैल्यू दिया है और y पूछा गया है। x का वैल्यू दिया है और y पूछा है वहां पे। ये समय सर 3/2। यस, हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट इज x इज -5 minus 6 into y is equal to 3. Rearrange the terms. 2 into -5 is -10. 3 goes here, it is -3. It is equal to 6y. Ameya, I think you need to recheck your value. Mohit, Yes, sir. Sir, -13/6. yes, this will be -13 and 6 goes in the denominator. The value will be -13/6. यानी यहाँ पर आता है वैल्यू -13/6 एंड यहाँ आता है वैल्यू, अगर ग्राफ बनाना हो तो you'll write the points. तो points are -5, -13/6. Similarly, दूसरी बार भी इक्वेशन में 2x - 6y is equal to 3, हम वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस वत्सल? सर वो आपने वैल्यू गलत जगह पे डाल दिया है, वो x की जगह पे है। x की जगह पे ना वैल्यू, अच्छा उस x की जगह ओके पे राइट साइड में x ही है वो। ओके ठीक है टेबल दूसरी तरफ से है।
सर मुझे लगा वो -5 के Yes, बाजू x, y, वाले x, comma, उसमें y ऐसे दिया हुआ। वो डालना था। नहीं नहीं नहीं, ये x, y और x, y. The table is given in horizontal manner. यस सर। ठीक है? Yes, Ojesh. Hello, sir. Yes, 3/2. या बोलिए। Yes, x value 3/2. Yes, हम यहाँ पे y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so that your value of x will be 3/2, Yes. and hence that is the correct answer. So ये 3/2 आ जाएगा, and therefore यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, 0. ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली लिया है because पहले एमसीक्यू में उसने बोला था कि for find the value of y for the value of x. x को है y फाइंड करना, इतना ही हमने किया था। लेकिन एमसीक्यू में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि if x is so and so, then what is the coordinate of the point? और वहां पे आपको y तो फाइंड करना ही करना है, लेकिन ऑप्शन में आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके ट्विस्ट किए जा सकते हैं when they will come in the MCQs. Write down this. I'll wait for a minute. Okay, I hope this is done. Anyone still writing? Raise your hands. Ameya and Ojesh. I hope your writing is done. Okay, so no hands raised. It means सबका लिखकर हो चुका है. We'll go to the next slide. See this question. फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है। उसने बोला है to draw the graph, find x when y is 1. ये आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं करने वाला। आपसे मुझे आंसर चाहिए। Yes, we'll ask the question to Mrudula. Yes, Mrudula, what is your answer? मृदुला, आपका आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ एक डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है अलग से। I'll just put you on mute. We'll ask to Vaidehi. Vaidehi, what is your answer? Sir, it is 2. It is 2. Okay, Yes. great. एक confirmation हम ले लेते किसी से। Samar, what is your answer? Sir, 2. Okay, तो ये आंसर कंफर्म हो गया। आंसर इज 2. आंसर इज 2. अगर फिर भी किसी को डाउट है कि कैसे 2 आया, तो द गिवन इक्वेशन इज 6x plus 7y is equal to 19. We have the value of y given. It is 6x plus 7 into y value is 1 is equal to 9. That means it will be 6x is equal to 19 minus 7 will be 12. And therefore your value of x will be 12/6, which is 2, and hence the answer is right. Option A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. Great. जिसने अगर सॉल्व किया है लेकिन आंसर कुछ अलग मिला है, गलत मिला है, कुछ कंफ्यूजन है, you can just write down this. Within 5 seconds we'll go to the next slide. Okay, moving to the next slide. Yes, Areen. No, sir. I was for answer. I raised. The next question मालूम है आपको? Okay, we will go to the next question. Now see this question. यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन पूछा हुआ है। 2x minus 3y is 14 and 5x plus 2y is equal to 16. Then what is the answer? अब यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करने के आपके पास अलग अलग मेथड है। You can prefer and you can write any one method. अब मैं यहाँ पे अगर MCQ सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे डिटेल में तो सॉल्व नहीं करना है।
व्हाट आई डू इज आई सी दैट एक प्लस एक माइनस है, बीच में एक प्लस एक माइनस है, तो इक्वेट कर लेते हैं y को। फॉर दैट फर्स्ट इक्वेशन आई मल्टीप्लाई बाय 2, वो हो जाएगा 4x minus 6y is equal to 14 2 is 28. Second equation में I'll multiply by 3. So 5 3 is 15x plus 2 3 is 6y. 16 3 is 48. तो इन दोनों equations को add करेंगे तो y will get cancelled and we will get 19x is equal to 40 60 plus 16 is 76. Yes, Diksha. Isha, you are unmuted from mine. Yes, Arin. Hello, sir. Sir, answer is D. X is equal to 4 and y is equal to -2. Okay. Isha, So the value of x is equal to 4. x is equal to 4 and y is equal to, Because, so just a second. yeah, 19 4 is 76. Correct है. 19 4 is 76. Yes, Vatsal. सर x equals to 4, y equals to -2. Very good. ये जो वैल्यू ऑफ x है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो. इफ आई से पुट इट इन 1, that is 2 into 4 minus 3 into y is equal to 14. 2 4 is 8. 8 goes on the other side, it will become minus 3y is equal to 14 minus 8 is 6. Therefore, y is equal to -2. X is 4 and y is -2. As you all said, it is there in option D. D is the correct answer. D को हम राइट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि दो क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर फाइंडिंग द एंटायर सॉल्यूशन, आप पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करते नहीं बैठोगे, आप उतना वक्त जाया नहीं करोगे, आपको सिंपली वर्बली उसको सॉल्व करने कितना आ सकता है ना वो करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे किया है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो आपको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ही करना चाहिए. दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट अगर वो आपके प्रैक्टिस करने पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा और कौन सा मेथड प्रैक्टिस करते हो. मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ बेटर मेथड. ओके, वो मैंने किया और मुझे उसका आंसर मिल गया. दिशा, यू हैव एनी डाउट? Diksha, do you have any doubt? Okay, fine. We'll go to the next question then. ये देखो, डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. बोलिए इसका आंसर क्या आ सकता है? Yes, Mohit. Sir, 26. 26. Okay. Mridula, just for confirmation. Hey, Mridula, आपका voice का कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा. We'll go to मधुरा. मधुरा बोलिए. 26 है. 26. अगर किसी को डाउट है तो देख लो. We are just cross multiplying this. -11 into -4, -11 into -4, minus 9 into 2 is equal to minus is plus 44, minus 9 2 is 18, 44 में से 18 subtract करेंगे we get 26, and hence option C is the right answer. जिन्होंने नहीं लिखा है you can just note it down. Okay, Areen, I hope you don't have any doubt. Still, अगर है तो आप पूछ सकते हो. Okay, so this is the question. I hope सबका लिख कर हो चुका होगा. We'll go to the next question. See the question. Now this is based on the application part. हमने देखा था ना application of linear equation. इसके भी questions आ सकते हैं. पर इसके questions वो पूरे नहीं पूछेंगे आपको. डिटेल वाला आंसर आपको पूछे ऐसा नहीं पूछेंगे. क्या पूछा है देखो यहाँ पे. उसने बोला है the difference between two numbers is 36
one number is 4 times the other number. Therefore, the numbers are okay. Difference between the numbers is 36. One number is 4 times the other number. हम पहला इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे. The difference means it will be x minus y is equal to 36. The difference between the numbers is 36. ये दिया है क्वेश्चन में. फिर बोलता है one number is 4 times the other number. अब ये obviously common sense की बात है. इन दोनों numbers में when I am writing x minus y is 36, x will be the bigger number and y will be the smaller number. X will be the bigger number and y will be the smaller number. यानी जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि one number is 4 times the other, it means I'll write x is 4 times the y. X is 4 times the y. अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे, है ना. हमने जो मेथड्स देखे हैं यहाँ पे ये ज्यादा सिंपल है क्योंकि x को सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ. हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 in equation 1, we get 4y minus y is equal to 36, which is 3y is equal to 36, and therefore y will be equal to 12. सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन 2 में, आपको x का वैल्यू मिलेगा which is 4 into 12. 12 4 is 48 and therefore value of x is 48. तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 48 and 12. आंसर होगा वो आपका होगा 48 and 12. I hope जितने हैंड रेजेस है सभी को आंसर सेम मिले होंगे. If anyone has some other answer than this satisfying the given condition, तो मुझे बता देना. For this question, answer is option B. अच्छा, कोई और है जिसको ऐसे लगता है कि नहीं सर ये मेथड हम नहीं करेंगे, और भी मेथड से हम कर सकते हैं, ये मेथड से जल्दी आंसर आएगा, तो वो भी बता सकते हैं क्या. तो जैसे मैंने मेथड की बात की तो दीक्षा हैज रेज्ड हैंड, अमय हैज रेज्ड हैंड. मैं दीक्षा को पूछूंगा. यस दीक्षा, व्हाट मेथड यू कैन यूज फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? So we can directly subtract the numbers which are given in the options, like 48 minus 12 is 36, and if we multiply the other number, that is 12 into 4, then we can get the number 48 too. एक्सेलेंट. ये ट्रिक वाली बात हो गई, क्योंकि आप अगर देखोगे ना चार ऑप्शंस, पहले ऑप्शन से अगर हम शुरुआत करते हैं, इनफैक्ट चारों ऑप्शन में उसने जो नंबर्स दिए हुए हैं तो ऐसे ही दिए हुए कि उनका डिफरेंस 36 आता है. लाइक 60 minus 24 is 36. 56 minus 14 अगर करेंगे तो 36 नहीं आता. 56 minus 14 is some 32 I think. 36 नहीं आता, तो वैसे भी ऑप्शन से रिजेक्ट हो गया. एंड 48 minus 24 करोगे तो भी आपको 36 नहीं आता. यानी आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि पहले कंडीशन में उसने दिया है डिफरेंस इज 36, तो वैसे ही आपको पता चल गया कि सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते बिकॉज डिफरेंस इज नॉट 36. अब ए और बी ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से सेकंड नंबर का 4 टाइम्स आपको फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए. तो 24 4 is 60 ये नहीं पॉसिबल है. 12 4 is 48 दैट इज पॉसिबल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यानी ये जो ट्रिक वाला मेथड जो अभी दीक्षा ने बताया वो बिल्कुल सही है, एंड उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दोनों आपके पास ऑप्शंस है, और डूइंग इट फॉर एमसीक्यूज आपका टाइम जो है वो आप बचा सकते हैं इफ यू नो द ट्रिक्स प्रॉपर्ली. ओके, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो अभी ये लिख रहे हैं, अगर ऐसा कोई है जो अभी भी लिख रहा है, यू जस्ट रेज योर हैंड्स. चलो, I hope this is done. Now tell me this. पहले वाले कॉलम में जहां x 0 दिया गया है, what will be y and what will be x comma y? What I see is now out of 180 students, same repeated hands ऊपर आते, बाकी है तो ट्राई नहीं करते हो. You try and you get the answer. Yes, आद्या बोलिए. Sir,
y is equal to 8 and x comma y is equal to 0 comma 8. Yes, here in the first case, the equation given is 2x plus y is equal to 8. जिसमें x उसने 0 दिया हुआ है, तो it is 2 into 0 plus y is equal to 8. तो आपको y मिलेगा 8. That is, here it is 8 and here it will be 0 comma 8. Okay, so this is one answer. दूसरे आंसर में x का बॉक्स खाली रखा हुआ है एंड y के लिए वैल्यू दिया गया है 4. तो कनिका, आप बताइए क्या होगा आंसर? कनिका, you are unmuted from my end. X is equal to 2, y is equal to 4, x comma y is 2 comma 4. Very good. In this case, what I find is the value given is for y. Y is given 4 और मुझे x पूछा गया है. When I solve that, I get 2x is 4 and therefore x is equal to 2. यानी यहाँ पर होगा x is 2, y is 4 and therefore the point is 2 comma 4. Okay, so this kind of questions can be asked from the chapter first. चैप्टर फर्स्ट के और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको आज होमवर्क के तौर पे भेजने वाला हूँ. ये एक और क्वेश्चन है. यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन. ये एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटर नंबर इज 12 ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है. स्मॉलर के लिए ही हैज टेकन इट एज y एंड ग्रेटर के लिए ही हैज टेकन इट एज x. उसका इक्वेशन क्या बनेगा? सम इज गिवन 12. आई अगेन रिपीट, मुझे रिपीटेडली जो हैंड्स आ रहे हैं ना उनसे अच्छा ऐसा कोई जो नया हैंड रेज आएगा ना अच्छा लगेगा बोलने के लिए. समृद्धि बोलिए. ऑप्शन सी. अच्छा, जो उसने बोला है वैसे हम लिखेंगे. उसने बोला है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर y, उसका ट्वाइस होगा 2y and the greater, that is x. That sum is given, it is 12. So option C is the correct answer. Application based questions में सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेंगे आपको इस तरह से देंगे जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इजीली आना चाहिए. ओके, आई होप दिस इज डन. ओके, अगर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ट्रिक भी डिस्कस किया था. आई होप आपको ट्रिक याद होगा. यहाँ पे भी आप ट्रिक करोगे तो इमीडिएटली आंसर मिल जाना चाहिए. आई फाइंड द सेम रिपीटेड हैंड्स. दीक्षा है, वत्सल है, मोहित है, अमेय है, मृदुला है, यस शुभद. या वेरी गुड. शुभद बोलिए. सर ऑप्शन बी. ओके, तो उस हिसाब से आपका सम 24 plus 11 is 35 and difference 24 minus 11 is 13. yes, option B is satisfied and hence the answer is option B. आप अगर बाकी किसी में भी ट्राई करते हो तो आपको ये दिखेगा कि ये मैच नहीं करते एंड देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 24 plus 12 is 35, that is correct. लेकिन sorry, 23 plus 12 is 35, that is correct. तो अगर डिफरेंस फाइंड करते हो तो 23 minus 12 goes to 11, not 13. Similarly 25 plus 12 is not 35, तो सम ही गलत है. 21 plus 14, the sum is 35, that is correct. लेकिन 21 minus 14 करेंगे तो डिफरेंस 13 नहीं आता. That is possible in only option B. तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आंसर आपको मिलता है ऑप्शन बी. तो ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं आपको सेंड करूंगा. ओके, आपको सॉल्व करने हैं. इफ एनीवन इज देयर हु इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्रुप, हु इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप एंड ऑल, और आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते, आई एम जस्ट शेयरिंग माय नंबर. यू कैन जस्ट मैसेज मी सो दैट आई विल सेंड दैट क्वेश्चन ऑन योर व्हाट्सएप. आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आपको उस एंगल में प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहिए. आई कैन सी देयर आर 2 रेज हैंड्स. सिद्धार्थ बोलिए.
शुभद बोलिए। सर मैं ग्रुप में नहीं। हाँ ठीक है, आप मुझे नंबर ले लो और मैसेज कर दो, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, सो आई विल सेंड यू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 1 तो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, आपको ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आप अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी फेस करते हो तो यू कैन डेफिनेटली टेल इट। ठीक है, so we'll stop here for the day. In the next lecture we will be starting with chapter number 2 questions, that is quadratic equations. तो आपको अगर थोड़ा रिवाइज करना हो, आप अपने quadratic equations के concepts को रिवाइज करके लेक्चर अटेंड करने में आओगे, थोड़ा एंजॉय करोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।